नमस्कार, टीवी9 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इवनिंग न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। सब तो पहला गल करते हैं पंजाब दी। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ SMS ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ SMS ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਈ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਫਾਰਮਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 16 ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਡੈਥ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਇਨਕਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਇਹ 16 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਸਰਨਡ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਵੇਕਲੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ SMS ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਉਸ ਲਿੰਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ SMS ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਾਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰੇਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ, ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਬਚੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਚਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਾਪੀ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਡੈਥ ਜਾਂ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਢਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੇ 50 ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, 10 ਕਾਪੀਆਂ ਕਢਾਉਣੇ ਤਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਚਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿੰਕ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਲਿੰਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਰ ਕਾਪੀਆਂ ਕਢਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 16 ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਐਜ਼ ਅ ਸੌਫਟ ਲਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਲੱਖ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਰਵਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣ वाले समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों ने इस बार राजनीतिक दलों और खाप पंचायतों से भी साथ देने की अपील की है और आज हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा इन पहलवानों का साथ देते जंतर मंतर पहुंचे। हालांकि अभी तक हरियाणा बीजेपी के किसी भी नेता की इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिसको लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही बीजेपी पर हमलावर हैं। तो उधर जंतर मंतर पर WFI के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सरान का पहली बार कोई बयान सामने आया है। हालांकि सीधे तौर पर देखा जाए तो बृजभूषण मीडिया से बचते हुए नजर आए और कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कोर्ट ही सब कुछ तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। कोई दम है आरोप में? सुप्रीम कोर्ट में जब मामला है तो हमारे कैंडिडेट। पंजाब में कोरोना के कारण सोमवार को 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 232 मरीजों के ठीक हो जाने से लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या में कमी आई है। हालांकि बीते 24 घंटे के दौरान राज्य में 131 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। राज्य में कोरोना के जिन 4 मरीजों की मौत हुई है, स्वास्थ्य विभाग ने उनके बारे में कोई भी खुलासा नहीं किया। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार रविवार को राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या जहां 2000 थी, वहीं सोमवार को कुछ मरीजों के ठीक हो जाने से ये घटकर 1995 पर आ गई। सोमवार को राज्य में 1276 सैंपल जुटाए गए। जांच के आधार पर कोरोना की संक्रमण दर 10.27% आंकी गई है। में जो कोरोना को लेकर अगर कहें तो हम पूरी तरह अंडर कंट्रोल है। कोविड के पॉजिटिव केस आ रहे हैं
हमारे ज़िले में इस वक्त 163 जो केसेस हैं वो एक्टिव हैं, लेकिन सिर्फ 3 पेशेंट हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। वो भी L2 लेवल के हैं, सिर्फ ऑक्सीजन पे हैं, कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे नहीं है। बाकी जो पेशेंट्स हैं वो सभी होम आइसोलेशन पे हैं और सभी पेशेंट्स माइल्ड सिम्टम के साथ हैं। सर, किस तरह की हिदायतें स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी जा रही हैं? हम वही रहते दे रहे हैं जो कोविड में पहले दे रहे थे कि थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखो, बिना काम के घर से बाहर ना जाओ, जहां बचाव हो सके भीड़ वाले इलाके से बचाव किया जाए। बिल्कुल पैनिक होने वाली कोई स्थिति नहीं है, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। फ्लू है, कोविड तो फ्लू चल रहा है, थोड़े केस आ रहे हैं पॉजिटिव, लेकिन पैनिक होने वाली कोई जो है इस वक्त हालात नहीं है। पेशेंट्स हैं जो पॉजिटिव हैं वो भी माइल्ड सिम्टम से हैं, तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी लोग बस थोड़ा सा जो है कोविड की हैं जो प्रिकॉशंस है उनका ख्याल रखें तो ठीक रहेगा। अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद अब उसका परिवार मुलाकात के लिए डिब्रूगढ़ जाना चाहता है। अमृतपाल के पिता ने बताया कि किस तरह से मुलाकात की इजाजत सरकार से मांगी जा रही है और इजाजत मिलते ही वो डिब्रूगढ़ रवाना होंगे। पहले तो हम एडवोकेट साहब से मिले थे, उनको साथ में लेके तो हम डीसी साहब को एप्लीकेशन दिए, तो उन्होंने बोला कि अभी मेरे पास उनका फाइल नहीं आया, जैसे भी आएगा तो मैं उसको अप्रूव करके आपको मैसेज दे देगा। क्या देखें अपील, क्या लेटर वो ये उनकी मुलाकात के लिए, वो जो उनका मुलाकात के लिए परमिशन। तो अंकल कोई पूछा गया कितने मेंबर मिल सकते हैं, उन्होंने कोई आपको बताया? वो बोले परिवार के 3-4 मेंबर मिल सकते, 4-5 तक मिल सकेंगे। तो अभी परमिशन मिलने के बाद ही पता चलेगा कितने दिन का उन्होंने आश्वासन दिया, कब तक ये परमिशन आएगी? वो बोले कि शायद 1-2 दिन तक हम लोग, जैसे हमारे पास फाइल आ जाती है उनकी, फिर उस टाइम हिसाब से आगे। तो क्या प्लान बनाया, कौन कौन जा रहा है अमृतपाल जी को मिलने के लिए? लेकिन अभी पहले तो परमिशन आएगा, उसके बाद भी डिसाइड करेंगे कौन जा सकता है, कौन घर रहेगा, कोई ऐसा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान डीम्ड यूनिवर्सिटी करनाल के 19वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति के साथ साथ हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कई केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्रियों ने शिरकत की। एनडीआरआई अपनी स्थापना का शताब्दी वर्ष मना रही है। इस मौके पर राष्ट्रपति मुर्मू ने एनडीआरआई में पहली क्लोन गाय गंगा को देखा और दुलार किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हरियाणा के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी पहुंची। ये कृषि विश्वविद्यालय का 25वां दीक्षांत समारोह था और अपने संबोधन में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि पराली जलाने से प्रतिवर्ष पंजाब, हरियाणा और दिल्ली क्षेत्र में वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। हमें प्रदूषण की समस्या का समाधान न सिर्फ अपने स्वास्थ्य के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ी के सुरक्षित भविष्य के लिए भी ढूंढना है। आप सभी जानते हैं कि पराली जलाने से प्रतिवर्ष पंजाब, हरियाणा और दिल्ली क्षेत्र में वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। हमें प्रदूषण की समस्या का समाधान न सिर्फ अपने स्वास्थ्य के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ी के सुरक्षित भविष्य के लिए भी ढूंढना चाहिए। इसके लिए हम सभी को एकजुट होकर प्रयास करना होगा। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पराली जलाने के विकल्प के उपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आपका ये प्रयास न सिर्फ पर्यावरण के संरक्षण में योगदान देगा बल्कि कृषि उत्पादों को भी बढ़ाएगा। हाल ही में पुंछ में सेना के ट्रक पर हुए आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे, जिसे लेकर पुंछ के गांव में ईद रही मनाई गई। रक्षा विशेषज्ञ अनिल गौड़ ने बताया कि जिस ट्रक पर हमला हुआ उसमें जवान इफ्तारी का सामान लेकर इफ्तार का आयोजन करने जा रहे थे। रमजान के पावन महीने में भी आतंकी अपने नापाक मंसूबों से बाज नहीं आए और पुंछ में हुई वारदात के बाद सेना ने गश्त बढ़ा दी है। देखिए, रमज़ान के महीने में बड़ा आश्चर्य की बात है कि ये एक बड़ा पाक महीना होता है और इसमें जो है लोग रोज़े वगैरह रखते हैं और वो जो है नमाज़ें वगैरह पढ़ते हैं और अल्लाह को याद करते हैं। तो इस दौरान जो है आतंकियों की गतिविधि जो है वो बहुत तेज़ हो गई है और उसी वजह से आप देखिए कि एक तो पाकिस्तान ने तेज़ी की है कि उसके अंदर वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन के लिए वो जो है कोशिश कर रहा है। दूसरा जो है आपने देखा कि ये रजौरी वाली साइड में जो है 2 अटैक हो गए हैं और फिर आपने ये देखा कि उसके ड्रोन जो है उनकी भी गतिविधि तेज़ हो गई है
और जो इनके जो अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनकी भी बड़ा वो तेज़ी से ये जो है कार्रवाइयाँ शुरू हो रही है। और इसके लिए क्या हुआ है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने, जब हमारे जो चल रही है हमारा ऑल आउट ऑपरेशन उसी के तहत चले जा रहा है, उसके अंदर अरेस्ट बहुत हुई हैं। हमने जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ से जो है काफ़ी जो असला बरामद किया है, लोग पकड़े हैं, उन्होंने अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर पकड़े। अभी जब रजौरी के अंदर ही आप ले लीजिए, उसके अंदर कोई 50 एक जो है जो लड़के हैं, जो यूथ है या जो बड़े हैं लोग जिनके ऊपर शक था और जिनके मोबाइल डाटा से कुछ ऐसी बातें निकली हैं, तो उनको अरेस्ट किया हुआ है। कईयों के ऊपर PSA लगाया हुआ है। और जो असला मिला है, जैसे कि आप देखिए ड्रोन से आ रहे हैं, ड्रोन से पिस्टल्स आ रही हैं, उसके साथ में उसके ड्रग्स आ रहा है, नार्को टेररिज्म के ऊपर जोर ज़्यादा हो गया है। ये सारी बातें जो हैं, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि रमज़ान के महीने में ही ये सारा कुछ हो रहा है। तो हमने जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो और नॉर्मली क्या होता है कि रमज़ान के महीने में भारत की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो थोड़ा वो ढील देते हैं, क्योंकि लोगों ने सुबह से उठना होता है, जाके वो एक तो अपना वो रोज़ा के लिए उन्होंने जो खाना पीना होता है नमाज पढ़ने के बाद उसके लिए, और दूसरा जब रोज़ा खोलना होता है शाम की नमाज के लिए, तो गति जो है आम पब्लिक काफ़ी चलती है, तो इसीलिए थोड़ा सा वो ढील दी होती है उन्होंने। पर ये जो लोग हैं, ये देखिए अब पाकिस्तान उसको रमज़ान के महीने का भी पाक जो है महीना भी उसको भी नहीं छोड़ता, और उसने अपने जो यहाँ पे जितने हैं ये अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स और जो थोड़े बहुत जो टेररिस्ट हैं उनको भी आदेश दिया हुआ है कि भाई आप रमज़ान के महीने में भी अटैक करते चलिए। तो ये एक मैं कहूँगा मानसिकता जो है पाकिस्तान की बहुत एक ख़राब है। हिमाचल में भाजपा ने नगर निगम चुनावों को लेकर दृष्टि पत्र जारी किया है, जिसमें 21 घोषणाएं की गई हैं। भाजपा द्वारा जारी किए गए दृष्टि पत्र पर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने जमकर निशाना साधा। नरेश चौहान ने कहा कि भाजपा ने जो दृष्टि पत्र जारी किया है वो 2017 में जारी किए गए श्वेत पत्र की कार्बन कॉपी है। भाजपा अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं कर पाई, अब झूठी घोषणाएं करके जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। आगे बढ़ाते हुए इस उम्मीद के साथ कि शिमला भी एक मिनी हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पूरे प्रदेश के लोग रहते हैं, तो कैपिटल है, इसका अधिकार है, इसको आगे बढ़ाना है, सुंदर बनाना है। लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पे पिछली सरकार में जो पैसों की जो एक मिसयूज हुआ है, वो एक अपने आप में बड़ा विषय है कि सबको उम्मीद थी कि शिमला एक बार इतना लोगों ने सुना कि स्मार्ट सिटी बनेगा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वंश आप देखिए कि आज शिमला में पीने के पानी की समस्या पहले से बढ़ी है, ट्रैफिक की समस्या बढ़ी है, पार्किंग की समस्या बढ़ी है, और लोगों की समस्याएं कम होने के बजाय पिछले 5 सालों में बढ़ी है। क्या इसकी जांच होगी? जो आप कह रहे हैं दुरुपयोग हुआ है, क्या इसकी जांच होगी? हमने ये कहा है कि जैसे ही हाउस बनेगा और जो 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे और हाउस में वो लोग डिसाइड करेंगे। बहुत सारे ऐसे विषय रहे हैं, पिछले कई सालों से लोग बार इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि स्मार्ट सिटी के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें पैसा बहुत ज्यादा लग रहा है, चाहे वो रोड की कंस्ट्रक्शन की बात है या कुछ और फैब्रिकेटेड जो इन्होंने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, उसको लेके बार ये चीजें उठती रही है कि इसमें जो है बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, मिसयूज ऑफ फंड्स का है। अगर जरूरी होगा तो सरकार इस पे जो है जांच भी करवा सकती है। सर, चुनावों के बीच जो है भाजपा ने अपना अध्यक्ष चेंज किया है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो किसी भी संगठन का अपना मामला होता है कि वो कब किसी अध्यक्ष को बदलते हैं, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से अगर होता है तो उसका इम्पैक्ट पूरे राज्य में जरूर होता है। कांग्रेस पार्टी को यही एक बात जाननी है कि जो प्रदेश की जनता के जहन में है कि ये जो आपने जो अध्यक्ष बनाए हैं डॉक्टर राजीव बिंदल जी, तो मुझे भी पूरी तरह याद है कि पहले 3 साल पहले भी उनको मौका दिया गया था, पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए थे, और किन कारणों से और किन परिस्थितियों में इनको उस वक्त जो है अपना पद त्यागना पड़ा, वो आज भी एक बहुत बड़ा सवाल प्रदेश की जनता के जहन में है। उसको क्लियर करना चाहिए, इनको बनाने से पहले करना चाहिए था, लेकिन वो सवाल अभी भी खड़ा है। तो इवनिंग न्यूज लाइव में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, और अपने राज्य की हर खबर पर नजर बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब करें TV9 का डिजिटल नेटवर्क। नमस्कार।